Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year class. How are you all beta? As all of you are quite aware that we have started our lesson number 2 using the scientific method, and we have read almost half of the lesson. Okay? And today inshallah we will continue the very next paragraph from page number 5. So open your books on page number 5, all of you. Okay students, let's start. More food and better food. ज़्यादा खुराक और ज़्यादा अच्छी. ठीक है. Changes have taken place too in our eating habits. जो changes हैं, as we know that we are studying about the benefits, about the advantages of scientific things and the using of scientific methods. So by using that methods we have been able to produce more food, and we are also able to get better food as compared to our ancestors. ठीक है बेटा, कि हमारे जो ancestors थे उनके मुकाबले में we are getting more better food. So what is the author saying that? Author saying that changes have taken place too in our eating habits. ठीक है, कि हमारी जो eating habits हैं उनमें भी changes आई हैं. Through second sentence, through the use of science we have learnt that it is healthful. ठीक है, healthful mean it is wholesome या it is beneficial. ठीक है, कि ये wholesome है, सेहतमंद चीज़ है. to eat many kinds of food, कि बहुत किस्म का खाना खाना जो है it is quite healthy, क्योंकि उसमें हर तरह के जो है वो vitamins होते हैं. ठीक है, फैट्स भी हमें मिलते हैं और आयरन होता है. सो that's why doctor says that we use all the vegetables and all the fruits and all these things we should add in our daily eating. And we have learned how to provide ourselves with a variety of foods. ठीक है बेटा. okay, variety mean diversity या range. कि we have also कि हमने और क्या सीखा है, how to provide ourselves with a variety of foods throughout the year. कि पूरे साल में हमने क्या सीखा है कि किस तरह से हमने अपने आप को पूरी जो है वो वैरायटी ऑफ फूड देनी है. ओके, पीपल हु लिव्ड a century ago probably enjoyed eating as much as we do today. ठीक है बेटा, कहते कि probably maybe कि people who were living 1 century before, of course they were eating, they also lived on eating food, so they enjoyed eating as much as we do today. But what is the difference between those people and us? This is the difference between, but they couldn't have as many different kinds of food. ठीक है, उनके पास इतने different kinds of food नहीं थे. ठीक है बेटा, most of their foods had to be produced on their own farm or in their own gardens. ठीक है बेटा, so most of the food it was produced, it was grown on their own farms. आपको याद है कि आपको आपके नॉलेज में चीज़ होनी चाहिए कि जो प्रीवियस बेटा ओल्डन पीपल थे, दे लिव्ड इन अ ब्रॉड हाउसेस, खुले खुले घर थे उनके. ठीक है, स्पेशियस हाउसेस होते थे उनके, बड़े बड़े घर होते थे, और ऑलमोस्ट हर घर के पास जो होता था एक अपना उनका एक तरह से गार्डन, घर के अंदर ही उन्होंने फार्म बनाया होता था. ठीक है, एंड दे यूज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, एंड दे प्रीफर टू produce to eat that vegetable or fruits produced in their garden. ठीक है, since fresh vegetables could be obtained only during the growing season, people living in all climates ओके, पहले ये बता दूँ आपको कि थे कि जो फ्रेश वेजिटेबल्स थी दे कुड बी ऑब्टेन मीन गॉट. ठीक है बेटा, कि जो कैसे ऑब्टेन करते थे, व्हेन दे दैट वर ग्रोइंग इन देयर ग्रोइंग सीजन. कि जैसे फॉर एग्जांपल क्यूकम्बर का सीज़न है, या पोटैटो का सीज़न है, या अनियन का सीज़न है. ठीक है, या कॉलीफ्लावर का सीज़न है. सो दे गॉट दोज थिंग इन दैट पर्टिकुलर सीजन. ठीक है, पीपल लिविंग इन ओल्ड क्लाइमेट्स, कोल्ड, सॉरी बार बार मैं ओल्ड पढ़ रही हूँ बेटा, इट्स कोल्ड. ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट्स हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. कहते हैं कि जो कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते थे बेटा, जहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती थी, तो वहाँ पे क्या होता था कि लोग जो हैं दे कांट डू एनीथिंग इन द विंटर सीजन. विंटर मंथ्स में वो जो है वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था गुजारा करना. ठीक है, थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स प्रिजर्व देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स. अब जो थ्रिफ्टी थी, ठीक है, थ्रिफ्टी मीन केयरफुल या कॉशियस. ठीक है, तो वो क्या करती थी, थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स प्रिजर्व मीन सेफ, महफूज कर लेती थी देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बाय कैनिंग. सो दीज आर द 3 ways बेटा, कैनिंग, पिकलिंग और
drying. These were the three ways that were used in past to protect the food and to save the food. ठीक है बेटा? ओके अच्छा, ये तीन चीज़ें थी कि कैनिंग, उनको जैसे कैन होता है प्रिजर्विंग बाय पुटिंग इनटू कैन्स और बॉटल्स. ठीक है बेटा? फर्स्ट थिंग क्या है? इट इज़, मैं इस पर कर्सर लेके आती हूँ, देखिए ज़रा, कैनिंग. ठीक है? कैनिंग मीन टू पुट preserve something by putting into cans or bottles. ठीक है बेटा? Next thing is pickling. What is pickling? Pickling is preserving और स्टीपिंग या मैरिनेट. ठीक है? जो मैरिनेट करके लगते थे, जैसे अचार डाल लेते हैं. ठीक है? हमारे घरों में तो अक्सर अचार डालते हैं ना. ऑलमोस्ट सबके जो एशियन लोग हैं दे वेरी फ्रीक्वेंटली यूज पिकल्स. ठीक है? तो कहते हैं कि ये पिकलिंग के थ्रू कर लेती थी, और ड्राइंग दैम, या फिर उनको ड्राई कर लेती थी, खुश कर लेती थी, दैम फॉर यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, और वो कब इस्तेमाल करते थे? कोल्ड वेदर में. मीट्स वर प्रिजर्व बाय सॉल्टिंग. ठीक है? मीट्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता था बेटा? बाय सॉल्टिंग, उसको नमक लगा के, एंड ड्राइंग, और बाय फ्रीजिंग व्हेन द वेदर वाज कोल्ड एनफ. ठीक है? फ्रीज करके या ड्राई करके उसको. सी फूड्स वर जनरली, जो सी फूड्स होती हैं, ठीक है ना, वर जनरली अवेलेबल ओनली अलोंग द कोस्ट. कोस्ट मीन्स सी शोर, जो सी शोर के पास जो उनका जो साहिल था वहाँ पे वो अवेलेबल होती थी. वो कैसे उसको करते थे? फिश एंड सेलफिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट. और जैसे वो उसको पकड़ते थे तो फिर जो है वो उसको उसी टाइम जो है वो फ्रेश यूज़ कर लेते थे, बिकॉज दे वर नो प्रिजर्विंग मेथड ऑफ दीज थिंग्स.